Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. Like, you just close your eyes in Chambal and it's just like so serene. Sound of the birds chirping. You just need to close your eyes and feel the music. Look at this. Hello. गैंग में सवार होने के लिए सबसे पहले मर्डर करना पड़ेगा। अल्लाह भाई वो डरा है, वो मर गया। Chambal Valley, the original wild west of India. Occupying the northern part of Madhya Pradesh and nestled between the borders of Rajasthan and UP, this place is as brutal as it is breathtakingly beautiful. And to know why, one needs to get back to the river from where it all started. I'm on a boat on the river Chambal, the river that lends the valley its name. So the story goes, after getting humiliated in the game of dice by Shakuni, Draupadi decided to curse this river and whoever drank from it. The curse seems to have stuck because this unholy river never got its share of temples, rituals, like other rivers in the country, like Ganga. What it got though was a fair share of crocodiles, ghadials, ravines, and a huge number of dakus. So much so that today, when you hear the word Chambal, nobody knows about the river, but everybody knows about guns, bullets, and bloodshed. Now out of the dakus, or bagis as they prefer to call themselves, one of the most feared happened to be Ramesh Singh Sikarwar, my host for this episode. With a gang of 32 bandits, Mr. Sikarwar operated in the Shivpur region of Chambal Valley during the 70s and 80s. By the time he surrendered in 1984, his count stood at 29 robberies, over 100 kidnappings, and 52 murders. But just when I was thinking that my host had left behind his life of crime and was leading a peaceful farmer life, my director had this to say about him. पर यार ये डाकू करता है क्या अभी? So he when he surrendered, he got a lot of land, and so he's farming. He was an elected official also in the village. क्या बात कर रहा है? सब normal. I won't say normal because just a few years back he was involved allegedly in some murder case. So he just got out of jail recently, like a few years back. Fuck. I don't want to like add to the list of dead people in Chambal, man. Good luck to me and the crew. And the crew. So I had a fever, severe cold, and I was on my way to meet one of the most prolific killers this country has ever seen, who from the sound of it was still flirting with trouble. The day couldn't have looked more upbeat. Fuck, this Daku looks badass, bro. मेरा नाम VC है। अच्छा। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। एक मुझे भी दे दो बंदूक और ये। आप मत लो बंदूक, हमारी बहुत है। ये बंदूक लेना बहुत महंगा पड़ जाता है यार। परिवार छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है, अलग ही देश बनाना पड़ता है। वो के लिए करना पड़ता है, अन्याय के विरोध में लड़ना पड़ता है। इसलिए तो मतलब अभी बहुत है। ठीक है। आप मंदिर में चलते हैं, आप मंदिर में आए। Like most Chambal Dakus, Sikarwar is extremely devoted to the goddess Durga, and it was at her temple that my welcome had been organized. मुझे जुकाम हो गया, थोड़ी चाय मिलेगी? बिल्कुल चाय मिलेगी आपको, चाय मिलेगी, नाश्ता। चंबल की चाय। हाँ बिल्कुल चंबल की चाय। सुना है काफी अलग है यहाँ की चाय। ये पानी इसके जो है तामसी है वो। तामसी मतलब? तामसी वो गुस्सा ही हालता है, मर्डर कर डाले। क्या बात कर रहे हो? मुझे किसी का नहीं कर रहा। After the murder-inducing tea, it was time for some simple village breakfast. बहुत बढ़िया। क्या क्या है जी? चावल ला। दाल, चावल,
हाँ दाल रोटी। चावल रोटी साहब, ये अपना सादा भोजन डेली का अपना ही, ऐसे ले लो जी रोटी ठीक है, बदल क्यों दिया आपने? हाँ चिंता नहीं से मैं बता बदल दे। लूंगा आपसे। तो मैं ये बदल हाँ। लूंगा। नहीं पर ये बदलते क्यों है? बदल ले कारण अपना ये है, कोई कछु हो सकता है ये थाली मेरे लिए आई है, आप गैंग के हम लीडर हैं, आप सोचा अगर ये मर जाएंगे तो पूरी गैंग खत्म हो जाएगी। हाँ। इसमें किसी ने अगर भोजन डाल दिया है पॉइजन, जहर, जहर। हाँ तो अपन बचेगा वहाँ, कोई साथी तो मरेगा, अपने साथी तो दूसरा जाएगा, और जब पेड़ कट का डाल कहाँ से आएंगे फिर वो? While we were having our breakfast, the local police decided to show up. But unlike the past, they weren't laying a trap for Mr. Sekarwar. Instead, they were interested in the film crew from Mumbai. क्या बागी जो बने, जी ये आप कौन से सन में बने, कैसे बने? ये अपन 76 में बने हुए थे जी, अपने चाचा की वजह से बागी बनना पड़ा चाचा की वजह से। जी। क्या किया था? चाचा जी जमीन जायदाद का रट्टा था अपना परिवार आपस में, इसकी भैंसों गाय का, फिर वो स्थान नहीं देना, अच्छा, हमारे भाई से बेईमानी कर लेना। आपके पिताजी से बेईमानी की? हाँ हाँ। फिर ये बागी बनना पड़ता मुझे, वो जो भी बागी बनते हैं उसी अत्याचार से बागी बनते हैं तो आपने बंदूक उठानी पड़ी। जी। This was a constant amongst all the Dakus of Chambal. The lack of alternatives to the police as a justice apparatus made the situation so bleak that people like Sekarwar felt that they had no options but to play judge, jury and executioner. तो पहला मटर हुआ था तो गुलाब धाकड़ का, और दूसरा? इसके बाद में मटर जो है होती है फिर वो 40-45 मटर हुआ थे। गैंग में सवार होने के लिए सबसे पहले मर्डर करना पड़ेगा था। बिना मर्डर के आदमी कोई आएगा तो गैंग उसको नहीं रखा जाएगा। क्यों हो सकता है वो पुलिस से मिलेगा आया हो गैंग को नष्ट करने के लिए, पुलिस प्रशासन जो उसको पढ़ा के भेजी थी गैंग में जाओ तुमको 2 लाख 10 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हारा लड़का पुलिस में भर्ती हो जाएगा। तो पुलिस वाला कभी मर्डर करेगा नहीं? पुलिस वाला मर्डर करता नहीं है। आप थे अपने गैंग के गब्बर, जी। तो आपके गैंग का सांबा कौन था जो टीले पे बैठ अभी के गैंग का समा काम प्रभु करते थे, प्रभु बैठे आपके पास में ये काम करते थे वो। टीले में बैठ जाते थे मिले बढ़ते और क्या बोलते थे इनको? भाई कहते कि लगाओ इसमें गोली, तो मैं मतलब बोली की गोली, इनने बोली और मैंने गोली दी, अल्लाह भाई वो डरा है वो मर गया। Loaded on fat rotis and ghee-heavy dal, it was time to meet the rest of the gang that had gathered at Mr. Sekarwar's house. And boy, did I get an introduction. ये बंसी कुशवाहा बंसी कुशवाहा। जी पुराना, और ये अपने कल्याण सिंह तोमर, ये जो है हाकिम सिंह कुशवाहा, इनके बच्चे हैं, अच्छा, इनके बच्चे नाती हाँ, इनके, ओके। ये दोनों भाई जी और ये खड़े हैं दोनों भाई हैं ये। अच्छा जी। इन्होंने ये तेलियों को मर्डर किया, तेलियों का राठौर बोलते हैं उनसे, इनकी जमीन में कब्जा कर लिया उन लोगों ने। हाँ। इसलिए दोनों भाइयों को मारा। ये बच्चा छोटा सू साथ में ले गए थे, हाँ। उसकी जंगल में शादी की अपन लोगों ने वहीं। इन सब के साथ आप बीहड़ में रहते थे, जी तो खाना वाना क्या करते थे, कैसे बनाते थे? जंगल में चल के आपको बताते हैं हम किसे रुकते थे, क्या खाना खाते थे, आपको खिलवाते हैं। वहाँ चले गए आप तो देखो जंगल में चले गए अंदर। मुझे ट्रेनिंग दोगे मतलब? हाँ आपको ट्रेनिंग देंगे, दिखाएंगे कि वो जगह कैसी है। हाँ कोई मौका आया तो कब आपको बागी बनना पड़ा तो बिल्कुल। बेड़ में चल के आपको दर्शन कराते हैं। चलो अब चलते हैं। चलो चलो। So it was decided to truly experience how these outlaws operated back in the day and what they ate on the run. I'd have lunch with them at their old jungle hideout. It wasn't as if I had much say in the matter. You mostly do as the Dakus say in these parts. यहाँ बेटा इस सामान को सब ये करके लोड करवा दो, पूरा सामान उठवा दो। Within an hour, tractors were arranged for the journey and loaded with raw grains, vessels, and a lot of people. I realized things move fast when you have seasoned bandits barking the orders. थकवा दिया? हाँ चलो बैठो गाड़ी में। After a customary shout out to the gods, we were on our way. Just as I was getting a little comfortable with these outlaws and enjoying the drive, I was reminded of how ruthless they were to anyone who crossed their paths, or worse, ratted them out. इसी क्षेत्र में एक दिन अपन यहाँ अपना कैंप लगा हुआ था, तो एक मारवाड़ी ने जाके पुलिस को मुखबरी दे दी उसने। अच्छा। कि साहब यहाँ गैंग है, आप मारो चलो हमारे साथ। पुलिस लेके आ गया, वो पुलिस से गोली चल गई। मैं कैंपल नहीं था तो अपना एक साथ ही अपना मारा गया। तो मैं शाम को उनके टप्परों में जाके पूरी जानकारी ली कि किसने गोली चलवाई है। अच्छा। तो पता लग गया मारवाड़ियों ने गोली चलवाई है। तो उसी रात को हमने 27 मारवाड़ी मारे थे। उसी रात को जाके क्षेत्र में पूरा भयभीत हो गया, प्रशासन पूरा हिल गया। ये क्या हुआ? बोलिए इस तरह कोई हमारी मुखबिरी करेगा
जब की 27 मारे 2700 मारूंगा सालों को। उसके बाद किसी ने इसके बाद कोई मुखर करने को तैयार नहीं था। Stone cold murders might have been A-OK with these hardened criminals, but alcohol and women clearly were not. फांसी तोमार अपने लिए एक बार मिला था जंगल में, उनके साथ 6-7 आदमी थे, 8 आदमी, तो वो लोग रम की दारू पी रहे थे। वो रम की दारू। हाँ, उसको देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा दादा आप उम्र में बड़े हो, आप बागी होते दारू पीते हो, आपको समझ नहीं आती घर से दारू पीना कर रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तुम जानते रहे दारू दवा होती है, दवा नहीं होती तो तुम्हें मौत है तुम्हारी है। वहाँ में 10-20 मिनट रुका, इसके बाद में बैठा भी नहीं। दारू को देख के मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। जब आप लोग जंगल में रहते थे हाँ जी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार लड़की भी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जरूरत होती है ना आदमी की। नहीं आप कह रहे हो सही है। हाँ। तो बागी जब होता है, बागी और बाबाजी मान महात्मा, हाँ। इन लोगों को मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे भी कोई होते होंगे डाकू जो भटक जाते होंगे? भटक जाते हो, मारे जाते हैं ना। जैसे कि अपने साथी थे, वो यहाँ से पास एक गाँव से जहाँ गाँव पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को पकड़ ले गए वो। हाँ। उसके साथ गलत काम किया, उसको कैंप पे ले गए वो। मैं पूजा कर रहा था तो मैंने देखा उसको, लड़की कैसी आ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये लड़की कौन लाया? हमारे सरपंच चमार और रामदार आप लेके आए। मुझे लगा दो गोली लो सालम फटाफट। प्रभु ने गोली दोनों गोली मार दी, वो लड़की अपने घर में ले गया। So this was turning out to be more than just a lunch date. I was also getting invaluable lessons in morality by one of Chambal's most notorious, the unexpected rewards of a life on the road. Finally, the roads disappeared and I was told that we'd be completing the rest of our journey on foot. I was also soon updated about my status in the traveling party. मैं कर देता हूँ मदद। हाँ मदद करिए, ले जो हमारी पकड़ी ले जाती है पुलिस करते हैं, वो सामान रहती है, सामान रख के चलो आप। पकड़ मतलब आप हमारी अपना कर दिया, आपका अपना हो गया फरण। आपने मेरा अपहरण किया। कर लिया अपना, चलिए ये जंगल खो के लिए चलिए। अरे चुपचाप, अरे यार करिए, चलो सीधे। I was about to descend into a thick forest with some of the most vicious bandits this country has ever seen on the pretext of lunch. I had no network, no safety equipment, and no way to tell my well-wishers where they should be looking if I go missing. So I thought it was only fair to ask as to where we were heading. ये क्या जगह है भैया? ये गांव मुरावन है, ये टिकटोली है। अब अपन ने इसमें जाना है अंदर। इनसे अपन जो खो बहुत लंबी चौड़ी है, इसी में आज रुकेंगे, आज यहीं खाना बनेगा। Our march through the jungle made me realize why this place must have worked as the ideal hideout. It was remote, rough, and known to the Dakus like the back of their hands. This was their turf, their home, unlike the police, who merely came visiting when shit hit the fan. After a couple of hours, we finally reached the hideout. आवाज कहाँ से आ रही है पानी की? आगे झरना है पानी का, इसमें अपन लोग यहाँ रुकते थे। देखो ये अपना घर है, ये जंगलों पर रुकते हैं तो जंगल जोकड़ी बागी होगी डकैतों की जगह ये अपना एक संतरी फैलदार ऊपर बैठा हुआ है अभी। अच्छा। अगर पुलिस आती है तो वहाँ से वो फाड़ देगा, अपने भी पता लग जाएगा और फाड़ देकर नीचे आ जाएगा, वो अपन लोग सीधे निकल जाएंगे। पुलिस अपना हजारों पुलिस वो अपना कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये बागियों ऐसी जगह पर रहती हैं, ये घर है अपने। आओ दिखाते हैं आपके लिए तो बनने आए। The hideout was swarming with villagers, cooking food enough to feed an army. It was just like the old days, and bandit camps would serve hundreds on special occasions. Mr. Sikawar decided to run me through the lunch menu. ये बात है, अभी ये घी में डालेंगे, ये खस्ता माल बन जाएगा, आप खाओगे तो ये कोई माल है। यहाँ बागियों को देसी जो है घी के अलावा या भिंडी तुरैया वगैरह जो जंगल मिल नहीं पाती है, दाल बाटी मिलती है और ये सबसे आदमी पौष्टिक रहती है, ताकत बनाती है। और क्या है जी पिटारे में? ये दाल बन रही है अभी। हाँ। तो ये बाटी के साथ में दाल खाई जाएगी। ये रंग इसका इतना लाल कैसे है? यार इसमें कलर मिर्ची डली हुई नहीं। अच्छा। हल्दी वो मिर्ची जो है डकैत ज्यादा खाते हैं। क्यों? कई गुस्सा बना रहे, रोस रहे उसमें। क्या बात? This was simple stuff, derived from the lack of options that the Dakus had on the run. Changing locations thrice a day and relying solely on local villagers for your supplies kind of makes you appreciate the simple things in life. But this does not mean that the Dakus skipped on dessert. ये क्या है जी? पकोड़े टाइप? ये पकौड़े टाइप घी जो है, इसमें चूरमा के लड्डू बनेंगे, इसमें शक्कर डलेगी, काजू किशमिश बादाम छुआरे सब इसमें डल जाएंगे। क्या बात? ये 3 मेवा है। तो बाजार में नहीं मिलता ये? बाजार नहीं बना, बाजार में तो डालडा का बनता है, उससे आदमी बीमार होता है, गैस बन जाती है, मर जाते हैं। The trek through the jungle had worsened my condition and all this food talk wasn't helping. I could hardly wait for lunch. सिकरवार जी? अजी
बोलो। मैं तो आधा हो गया हूँ यहाँ चढ़ चढ़ के। अरे भूख लगी आपको, मैं समझ रहा हूँ आपकी मानी बात। मैं इधर ही पत्ते की तरह कहीं मिलूंगा गिरा हुआ। नहीं नहीं, आपको खाना खिलवाते कुछ खिला दो। तैयार ला बेटा, पश्चिम में दाल गरम गरम पी लिए तो जुकाम सही हो जाएगा आपका। ये बाटी है, बाटी आ गया। बाटी आ गई। तो इतनी भूख लगी है, ऐसे ही खा जाऊंगा खाना। शिकारवार जी, ये आपने सरेंडर कब किया था? 27/84 किया था। क्यों किया सरेंडर? कब लगा कि भाई बहुत हो गया अभी? पूरी क्षेत्र की जनता ये कहने के भाई साहब वो 10 साल हो गए जंगल में रहते रहते, अब तो आप सरेंडर कर दो, हम लोग सब परेशान हैं। उधर मुख्यमंत्री मिल गए थे अर्जुन सिंह, उन्होंने बोला आपको जितनी सुविधा मैं सब सुविधा दूंगा, जमीन मिल जाएगी, राइफल लाइसेंस मिल जाएंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, आप सरेंडर कर दो आप। Sikarwar had put down 18 conditions in front of the government before surrendering, all of which were eventually met. Talk about having your cake and eating it too. Just before I could ask Mr. Sikarwar whether he now felt any remorse for his crimes, one of the gang members spotted a few monkeys up on the trees and obviously decided to use his loaded gun to scare them off. एक सेकंड। Note to all animal lovers, it was just a warning shot and the monkeys escaped unharmed. I can't say the same about my eardrums though. और नहीं थैंक यू। बंदर कैसे बजी है, मैंने जानी मारी ऐसी बजाओ। तो शिकारवार जी, अरे इतने सारे साल हो गए, हाँ मतलब छोड़े हुए आपको 32 साल हो गए, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपको पश्चाताप हो कि मैंने क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं, वो नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है, जो लोग मरे हैं उनके मरने से जनता गांव वाले जगह भाई साहब बहुत अच्छा मरा, और निर्दोष आदमी मरता है उसका दुख होता है। निर्दोष आदमी मरा कभी? एक आदमी मरा था, कौन उसका था? दुख होता है। एक था, एक उधर शिवपुरी जिले का, अपने गैंग वालों को प्यास लगी पानी पीने के लिए, रात का टाइम था, हाँ। तो उसको ट्यूबवेल वो सो रहा था खटिया पर, उसी बंदूक रखी थी, हमने पानी पिलवा दो, वो गाली देने लगा, बोले तुम कौन हो? हाँ, ये कुआ है यहाँ, तुम्हारे यहाँ कुआ दुनिया पानी पीने आती है। भगवान ने लगता हाँ है। बेटा इसमें पानी है, पानी पीने आए, पानी पी हम तो निकले, हम कोई मतलब नहीं यहाँ पानी मिलेगा किसी को, गोली देंगे बेटा तू मर जाएगा। मैंने उसकी राइफल छीन ली, मेरी आवाज़ बंद कर ले, वो गाली देने लगा। मैंने कि हम बागी हैं, बोले देखे बागी, मैं साले आवाज़ निकाला मार दूंगा मैं। बोले मार, कैसे मारता है, तेरी माँ ने दूध पिला तो मार मुझे, तो उसने तत्काल गोली मार दी। और मरने के बाद खुद दुख हुआ, मैं देखो इसका कहते हैं काल, वो साल अपने आप मर गया, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी ऐसा आदमी मर जाए तो दुख होता है। Sikarwar and gang believed that even though most outfits like theirs might have either surrendered or exterminated by the police, a new breed of even more dangerous and completely legal bandits had taken over present-day Chambal. क्या आज के जमाने के डकैत कौन है? आज के जमाने के डकैत तो सफेद वर्दी वाले और खाकी वर्दी वाले, दोनों डकैत हैं। सफेद वर्दी वाले नेता लोग हैं, बड़े जो करोड़ों रुपए खा रहे हैं, करोड़ों अरबों घोटाले में जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। और दूसरे डकैत जो है सरकार द्वारा मान्यता लेके जो खाकी वर्दी पहन लगी है, वो रोड पर खड़े होकर सरेआम लूट रहे हैं, मोटरसाइकिल लूट रहे हैं, ट्रक जा रहे ट्रकों लूट रहे हैं, बसों को लूट रहे हैं वहाँ से। और प्रशासन सब मोड़ बैठा हुआ है, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन हम लोग कोई नहीं होता है। बहुत बढ़िया जी, लड्डू तो लड्डू में फील है भाई। लड्डू ठीक लगा आपको? लड्डू में फील है, हाँ शहरों में बोलते हैं फील है। हाँ। It was starting to get dark, and even the Dakus couldn't have assured our safety from what lurked here in the night. But before we could wrap up and call it a night, Prabhu Singh broke into an act that the gang used to employ to stop buses and kidnap their passengers. जब मैं पकड़ करने जाता तो ऐसा भेष बना के पागल बन के और मैं जाता तो मेरे को गाड़ी में बैठा लेता ड्राइवर, और गाड़ी में बैठा के और मैंने रिवॉल्वर निकाले और कान पे लगा दी, अरे अरे मैं रमेश सिकरवा धुआं लगा दूंगा। तो ड्राइवर की सीट हल गई और 2 किलोमीटर भीतर जंगल में और लेके चले गए और पकड़ करके और बाकी की बजा दे। Performance done, it was time to get out of the jungle and get back up to the surface. बहुत धन्यवाद आपको। अब कभी बम्बई हमको ही घुमाओ यार। बिल्कुल, आप जब मर्जी आइए, हाँ हम आपकी उतनी सेवा करेंगे अच्छा अच्छा जितनी आपने हमारी की। Hugging and saying goodbye to bandits who between them may have killed more people than a typical natural disaster is always awkward. But dining with them made me see firsthand the Robin Hood complex that inflicted these Dakus.
They saw themselves as messiahs of the poor and felt little or no remorse for their crimes. This is what makes Chambal such a scary place. Here violence is not looked down upon, but is almost a way of life. Next day, I was to break bread with an individual whose job was to use the same violence against the Dakus, an encounter specialist, whose killing count actually stood at more than double of Sikarwar's. All of this was getting a bit too surreal for a sick man to process. So I decided to do what I do best. Pass the fuck out. हमारा खाना पसंद आया तो एक से एक इंडिया का लाल बटन दबाना और नहीं तो फिर गोली खाना. मुझे माफ कर दो. We are also on Facebook, Twitter, Instagram, and I might soon be in the grave if you don't subscribe. Watch more Dinner with the Dons on 101india.com.